चलें कोई बात नहीं. Okay, let's discuss it in detail. The first thing, like Numan told us, that treatment with chemicals is labeled as chemotherapy. It is the literal meaning of this terminology, chemotherapy. Chemo means chemical, therapy means treatment. But what is the pharmacological definition of chemotherapy? The definition which we implement while discussing the chemotherapeutic agents is somewhat like this: use of chemicals which are selectively toxic to the pathogens. Selectively toxic, which include bacteria, viruses, protozoans. एक मैं सबको दोबारा म्यूट कर दूं. Okay. While having minimal effects on the host. So this is the most accepted definition of chemotherapy, that use of chemicals against the certain microorganisms. But there is another definition which states that chemotherapy is a drug treatment that uses powerful chemicals for the which can kill fast growing cells in our body like cancer cells. So whenever we discuss the anti-cancer treatment, then we say that chemotherapy or therapy with certain chemicals to combat or abate the cancers. So these are 2-3 separate definitions of chemotherapy. So we cannot include every chemical in the terminology of chemotherapy, because the chemical should fulfill either one of this definition to be included in the terminology of chemotherapy. What is antibiotic? Antibiotic, everyone knows that antibiotic is any antimicrobial, it is the antimicrobial drug which is used for two purposes: either to prevent the bacterial infection or to treat the bacterial infection. So whatever the purpose we are utilizing the drug, that particular antimicrobial drug will be labeled as antibiotic. Whereas drugs which are used to treat viruses, they are called antivirus. Likewise, antifungal, antiprotozoal, anti-parasitic, anti-helminthic. So depending upon the type of organism against which the drug is being used, we use the terminology. But this term antibiotic, it is specifically restricted to be used for the bacteria. So drugs used to prevent the bacterial infections or drugs used to treat the bacterial infections, they are called antibiotics. So what is vaccine? Anyone? कोई तो बता दे जी, what is vaccine? चले मैं ही बताता हूँ बच्चों. वैक्सीन क्या होती है? इससे पहले ना आप एक चीज समझ लो. जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी. चलें बैक्टीरिया की ही एग्जांपल हम ले लेते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं जी डिप्थीरिया की ले लेते हैं, ठीक है. पर्टूसिस की ले सकते हैं, टीबी की ले सकते हैं. चलिए हम डिप्थीरिया की ले लेते हैं. देखिए अब डिप्थीरिया है, पुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरी इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिप्थीरिया. ये किसी जमाने में बहुत ही डेडली डिजीज थी बिफोर द invention of the vaccine against diphtheria. Today we have very effective vaccine against diphtheria. That's why we do not see diphtheria cases very commonly. अब एक डिप्थीरिया के जो ऑर्गेनिज्म है, पुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरी, बॉडी किसी भी बच्चे में जाता है जब ये, तो डिप्थीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जिसके अपने सारे सिम्टम्स हैं. अब कोई भी जब एंटीजन बॉडी में जाता है, देन बॉडी रिएक्ट्स बाय मेकिंग एंटीबॉडीज टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन. अब जो एंटीबॉडीज होती है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं दैट एंटीबॉडीज दे आर अगेंस्ट द एंटीजन, दे आर अपोजिट टू दैट ऑफ द एंटीजन. बट व्हाट इज द ट्रू जॉब ऑफ एंटीबॉडी? द ट्रू जॉब ऑफ एंटीबॉडी इज टू मेक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है. व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? There are many purposes. One of the purpose of this antigen antibody complex is to present the antigen to the phagocytic cells of the body. For example, macrophages. Macrophages, they are the phagocytic, one of the phagocytic cells of our body. Natural killer cells दूसरी टाइप होती है हमारे पास, जो phagocytic cells होते हैं. तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली जो एंटीबॉडी है ना, वो एंटीजन को अपने साथ बाइंड करती है, उससे फ्रेंडशिप करके उसको सीधा ले जाती है फेगोसिटिक सेल्स ऑफ बॉडी के पास. फिर ये सेल्स क्या करते हैं? दे फेगोसाइटोज द कॉम्प्लेक्स एंड दे डिस्ट्रक्ट द एंटीजन. सो दैट्स हाउ आवर बॉडी इट एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन. सो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक सीधा सा मतलब ये हुआ कि जी, फॉर इफेक्टिव इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन वी मस्ट हैव एंटीबॉडी इन आवर ब्लड. अगर एंटीबॉडी ब्लड में होगी तो इन्फेक्शन जो है वो इरेडिकेट हो जाना है.
अब इस एंटीबॉडी के ब्लड में दो तरीके से आ सकती है। हम एग्जांपल वही कोट करेंगे डिप्थीरिया की। पहला तरीका बच्चों ये है कि डिप्थीरिया से पर्सन जब जब इन्फेक्ट होता है, देन दिस डिप्थीरिया एंटीजन इट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। वंस द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, देन डिप्थीरिया इन्फेक्शन इज गॉन। और इसके बाद कभी भी लाइफ में उस पेशेंट को डिप्थीरिया का इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द आईजीजी एंटीबॉडीज दे रिमेन इन आवर ब्लड लाइफ लॉन्ग। वंस वी acquire the diphtheria infection, then we become immune to the diphtheria infection। एक तो ये तरीका है कि नेचुरली बंदा इम्यून हो, नेचुरली कि एक्सपोज हो एंटीजन से और एंटीबॉडी बना के इन्फेक्शन से ठीक भी हो जाए और फ्यूचर में इम्यून भी हो जाए। इसका दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? जो सेकंड वे इज कि हम वैक्सीन दे दें। व्हाट इज वैक्सीन? हम इस केस में क्या करते हैं जी, वैक्सीन के दो तरीके होते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बनानी होती है, उसको या हम किल कर देते हैं या उसको वेरी वेरी वीक कर देते हैं। इतना वीक कर देते हैं कि वो पैथोलॉजिकल डिजीज विद फुल स्पेक्ट्रम इनिशिएट नहीं कर सकता बॉडी में। तो इस वीक ऑर्गेनिज्म को या हम इस डेडली ऑर्गेनिज्म को जब बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, देन बॉडी रिस्पॉन्ड्स एंड इट मेक्स द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वीक एंटीजन। So that's how we cause the formation of antibodies in the blood। एक तरीका ये होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये सारी की सारी हमारे पास जो होती हैं किल्ड होती हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म को हम किल करके इंजेक्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। एक और तरीका होता है बच्चों वो तरीका क्या होता है कि उसके अंदर हम ये करते हैं कि एक बंदा जिसको इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, कोरोना किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ वायरस से, उसकी बॉडी ने अपने आप उससे फाइट किया और फाइट करने के बाद बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं फिर वो बंदा इम्यून भी हो जाता है और वो बंदा ठीक भी हो जाता है। What we do is that we extract the antibodies from the plasma of that person। वो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इज द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम ऑफ द एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पेशेंट से जिसको इन्फेक्शन हो गया और वो बंदा ठीक हो गया हो। देन वी इंजेक्ट दोज इम्यूनोग्लोबुलिन इन अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द डिजीज। मैकेनिज्म बच्चों वही रहेगा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज दे विल गो एंड दे विल बाइंड विद द एंटीजन इन द सेकंड पर्सन। After binding with the antigen, they will present this antigen to the phagocytic cells of our body, which can be many। So vaccine बता दिया मैंने आपको, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। It is the biological preparation which protects people against harmful diseases before they come into contact with them। हम पहले से ही उनको इम्यून कर देते हैं by initiating the formation of antibodies। इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बात कर ली। एंटीबॉडी का साइंटिफिक नेम है इम्यूनोग्लोबुलिन। इट इज द पैसिव इम्यूनिटी बूस्टर बेसिकली। ठीक है, किसी भी बंदे को इन्फेक्शन हो गया हो और हम अगर ना करना चाहें कि जी उसकी एंटीबॉडीज पता नहीं कब बनेगी भी कि नहीं बनेगी, तो हम उसको बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कर देते हैं एंड दैट पर्सन इज रैपिडली इम्प्रूव्ड। So these are 5 types of immunoglobulin: IgG, A, D, E and M। IgG बच्चों जो होती है, दिस इज द वन विच स्टेज इन द बॉडी लाइफ लॉन्ग ठहरती है और किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी परमानेंट एंटीबॉडी बनती है दैट इज IgG। तो IgG को मैं बोलता हूँ इट इज द ग्रेट एंटीबॉडी। ग्रेट, आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है ये वंस यू मैन्युफैक्चर इट। चाहे आप वैक्सीन से इसको अपनी बॉडी में मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, इन ईदर केस दिस IgG, दिस ग्रेट एंटीबॉडी, इट विल स्टे इन योर बॉडी लाइफ लॉन्ग। इसकी दूसरी ब्यूटी क्या होती है, दिस IgG it is the only antibody which can cross the placenta। So mother to fetus जो एंटीबॉडी क्रॉस करती है that is IgG and this IgG it gives protection to the baby, only antibody। अब मुझे कौन बताएगा जी which antibiotic is better? Antibiotic, the antimicrobial used to prevent or treat the diseases of bacteria। We have 2 types of antibiotics: high potency antibiotics and high efficacy antibiotics। Which one is better? अक्सर सुनते हो कि जी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सुनते होगे कि जी डॉक्टर ने जी मेडिसिन लिख के दी, बड़ी हाई पोटेंसी है जी, बड़ी हाई पोटेंसी है, मेरा तो मुंह खुश्क हो गया, मुझे तो मुंह में छाले निकल आए, पता नहीं क्या कुछ हो गया। So what do you understand by this terminology, high potency antibiotic and high efficacy antibiotic, and which antibiotic should be prescribed?
प्लीज रेज अ हैंड। अस्कर रहमान, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी अस्का बोलें, विच एंटीबायोटिक इज बेटर? हाई एफिकेसी की देंगे, क्योंकि अगर हम उसे हाई एफिकेसी देंगे, ठीक है, क्यों देंगे हाई एफिकेसी? सर क्योंकि जब हम उसे हाई एफिकेसी देंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि अगर उसको थोड़ी अमाउंट के अंदर वो इफेक्टिव नहीं रही तो हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हम उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो उसका मैक्सिमम इफेक्ट है वो ज्यादा है, उसका जो सीलिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो हम उसकी ड्यूरेशन, उसकी जो अमाउंट है अगर वो कम पे इफेक्टिव नहीं है तो हम उसको ज्यादा करके हमारे पास एक रेंज बन जाती है कि हम उससे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम जब भी कोई ड्रग सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको हाई एफिकेसी पे, उसकी एफिकेसी की बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, यस। कोई और बच्चा? कोई और? कहावर अब्बास, ठीक है जी, एक सेकंड आपके वन म्यूट करते हैं अभी। हाँ जी कैप्टन बोलो, विच एंटीबायोटिक इज बेटर? दोबारा म्यूट हो गया, सॉरी, जस्ट वेट। हाँ जी कैप्टन बोलो। अच्छा, नहीं बोलना लगता भाई ने, खुद ही म्यूट किए जा रहे। ओके, इब्तिहाज। हाँ जी इब्तिहाज बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही इब्तिहाज। नहीं, लगता है मे बी कोई इशू आ रहा है, आई डू नॉट नो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चले मैं ही बताता हूँ जी इसको। देखिए हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, वन इज हाई पोटेंसी एंड द अदर इज हाई एफिकेसी। ठीक है, व्हाट इज पोटेंसी? पोटेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन। ठीक है, हमारे पास दो एंटीबायोटिक्स हों, उसमें से जिस एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन लो होगी, जो कम अमाउंट के अंदर इन्फेक्शन को ट्रीट कर देगी, दैट विल बी लेबल्ड एज हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक। एंड व्हाट इज हाई एफिकेसी एंटीबायोटिक? अगर दो एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी डिफरेंट हो, ठीक है, एक की एफिकेसी लेट्स सपोज 80% हो इन्फेक्शन ट्रीट करने की और एक की 90% इन्फेक्शन ट्रीट करने की, देन द वन विद हायर कैपेसिटी विल बी लेबल्ड एज हाई एफिकेसी एंटीबायोटिक। अब हमने क्या सिलेक्ट करना है जी? एज ए क्लिनिशियन जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, यूजुअली आप ये सुनते हो जी कि हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक। So this is basically the wrong terminology. The correct terminology to be implemented by doctors should be high efficacy antibiotic. Please look at this diagram. ये देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हमारे पास ये ड्रग ए है ब्लू कलर के अंदर, एज यू कैन सी द ड्रग ए इट हैज वेरी गुड इफेक्ट। So this peak point, please follow the pointer. This peak point, it is telling us that it has this is the efficacy point. The maximal effect produced by drug A is this point, whereas comparatively drug B initially it is producing great effects in the less doses as compared to drug A, but after a certain period of time, the effect of drug B it becomes consistent or constant. That is, it achieves efficacy. So in this particular scenario, if I ask which drug will be better to be prescribed, then obviously we will go for the drug A. Although the efficacy of drug B is lower and drug B is high potent as compared to drug A to a particular point. इस point तक, जिस point तक drug B की efficacy achieve नहीं होती, उससे A की potency ज़्यादा है. Why? Because it is producing the similar effects just like drug A in a lesser dose. But ultimately बच्चों हमारा target क्या होता है? The target of a doctor is to eradicate the disease, to cure the patient. डॉक्टर इस चक्कर में पड़ा रहे कि कम ड्रग दूं, ज्यादा ड्रग दूं, या कौन सी ड्रग दूं जो कम डोज के अंदर पेशेंट ठीक कर दे, तो इस चक्कर में रहेगा तो पेशेंट जो है वो मतलब ट्रीट भी नहीं होगा, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट पेशेंट माइट डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक
because it is this antibiotic it is not capable enough to treat certain infections. इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास ड्रग ए और ड्रग सी हैं, then obviously we will go for drug A. Why? Because drug A and drug C, they have almost similar efficacy, but drug A it has very good potency because drug A is producing similar effects in lesser dose as compared to drug C. But if we are comparing drug A and drug B, we will always go for drug A. This is one scenario. अब आगे चलते हैं. But this is second scenario. We have drug X in blue color and we have drug Y in black color. In this particular scenario, as you can see that the maximal effect produced by drug X and drug Y, they are equal. Both antibiotics, they are producing the similar effects. So in this particular scenario, if we are 100% sure that the two antibiotics, they have similar efficacy in the treatment of certain infection, then obviously we will go for the drug with less dose. So in this scenario, we will choose the drug X. हम हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक तब सिलेक्ट करेंगे जब दोनों ड्रग्स की एफिकेसी सिमिलर हो. अगर दोनों ड्रग्स की एफिकेसी सिमिलर ना हो, देन वी विल गो फॉर द हाई एफिकेसी ड्रग. वी विल नॉट गो फॉर द हाई पोटेंसी ड्रग. इसकी 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 सादा सी मिसाल बच्चों ये है, एक स्टूडेंट है हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन कम पढ़ता है, और दूसरा स्टूडेंट है वो लेस इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू कम है लेकिन वो ज्यादा मेहनत करते है, ज्यादा पढ़ता है. इन द एंड हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो जो एग्जाम पास करेगा. हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि कम पढ़ के एग्जाम पास किया या ज्यादा पढ़ के एग्जाम पास किया. इट डजंट मैटर. द टारगेट इज टू पास द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. Likewise, the target of a doctor is to cure the disease, is to make the patient symptom free. चाहे वो हाई पोटेंसी से हो, चाहे लो पोटेंसी से हो, चाहे हाई एफिकेसी से हो, चाहे लो एफिकेसी से हो, जिससे मर्जी हो, बट the chances of patient to be treated, they are manifold higher if we select the drug with high efficacy or good efficacy. Please always go for the high efficacy drug. Do not go for the high potency drug. This is another scenario. In this scenario, as you can see, the drug X and drug Y. Drug X has good efficacy, drug Y has less efficacy. In this particular scenario, drug X, it is highly potent, as well as drug X, it is highly efficacious. We are selecting drug X for the treatment of certain disease, not because it is highly potent, but because it has high efficacy. So बड़ा ही confusing सा point है. हर बंदा potency की ही बात करता है. I do not know why. Maybe के potency का word charming सा word है, बोलने में अच्छा लगता है जी. potency, potent, potency, high potency, तो बड़ा ही मतलब बोलने में अच्छा लगता हो. जिस भी डॉक्टर को देखो पोटेंसी की बात करता है, बट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अप टू डेट गाइडलाइंस, always go for the drug which has good efficacy. You have to treat the patient no matter what. Okay ji. Any question regarding potency and efficacy, you can raise a hand if you have any. Okay. Next, so this is a simple illustration which is summarizing the units or the areas which we will be discussing in our chemotherapeutic discussion. On the left side, the first one is antifungal agents, then we have antiviral agents, then we have antibacterials, or discuss antibiotics in 5 subcategories. The first category would be cell wall sensor inhibitors, then we will discuss protein sensor inhibitors, and then we will discuss the aminoglycosides, then sulfonylureas, then we will discuss in final the fluoroquinolones. So these are the 5 broad categories of antibiotics. Then we will discuss antimicrobials and antiprotozoals. We will also discuss the against the parasites. We have 2 types of parasites, living on the surface of body, living inside the body. So depending upon the location, we have ectoparasiticides and we have endoparasiticides. On the right side of this illustration, we have 4 other areas to be discussed in chemotherapy, which include immunosuppressive agents, anti-cancers, certain miscellaneous antibiotics. Then finally, we will discuss antiseptics, disinfectants, and sterilants. So this is the brief summary of chemotherapy, what would be included in the chemotherapy in the coming discussions.
This is the simple illustration which is telling us what are the different sites or what are different targets of antibacterial agents. Please follow the pointer. This is bacteria, outer one is cell wall. There are certain antibiotics which act on the cell wall, for example, penicillins, cephalosporins, bacitracin, vancomycin, polymyxins, and tyrothricin. So these are the antibiotics which are against the cell wall. Polymyxins, they are against the cell membrane, not cell wall. Then we have certain antibiotics which are directed against the manufacturing of tetrahydrofolate, which is the active form of folic acid. Folic acid it is required during the manufacturing of DNA, during the DNA replication process. So if we somehow block the manufacturing of tetrahydrofolate by sulfonamides and trimethoprim, no DNA will be formed during the replication phase. Bacteria, they will not multiply and they will not cause disease. Then we have gyrase inhibitors, which are direct inhibitor of the DNA replication process. Then we have protein synthesis inhibitors, which include tetracyclines, aminoglycosides, and etc. So these are the simple illustration which is telling us some areas to be discussed in antibacterial. So what is the difference between bacteriostatic and bactericidal drugs? The terms, they are self-explanatory. Bacteriostatic means the drugs which cause inhibition of the growth of bacteria, whereas the drugs which cause killing of the bacteria, they are called bactericidal drugs. So if you can appreciate on the left side of this diagram, this one, this is bactericidal. Okay. This is the petri dish in which there is colony of bacteria. When we instill few drops of antibiotics into this colony of bacteria, then if this antibiotic organisms, whereas if this antibiotic is bacteriostatic, it will restrict or inhibit the growth of bacteria. फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, जो बैक्टीरिया हैं वो उतने ही रहेंगे, उनकी किलिंग नहीं होगी, बट वो दे विल नॉट बी केपेबल ऑफ multiplying. This black line, it is representing the control when no drug was added. This blue line, it is indicating the bacteriostatic drug. As you can see, there is halting of growth of the bacteria. This rapid decline in the growth, it is due to the use of bactericidal agents, because these drugs, they are causing the death of bacteria. What is MIC? What is MBC? MIC and MBC, both terminologies, they are used to compare the effectiveness of two antibiotics. MIC, it is the minimal concentration of drug which prevents the visible growth. Please remember this one word, visible growth. ये आपने अगर याद नहीं किया तो आपको डेफिनेशन समझ नहीं आनी. Visible growth. MIC is the minimum concentration of drug which is required, which prevents the visible growth of any organism after 24 hours of incubation. And what is MBC? MBC is the minimum concentration of any antibiotic or antimicrobial which results in 99.9% death कह लें or decline in the colony count कह लें of incubation. इसको हम explain करते हैं with the help of this illustration. Please look on the left side of this diagram. We have 8 test tubes. These are the test tubes कह लें, जो भी हैं, containers कह लें. We have 8 containers or test tubes. हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम इनके अंदर वेरिंग कंसंट्रेशन के अंदर एंटीबायोटिक पहले से ऐड करते हैं. एज यू कैन सी वी हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ 64 एंड वी हैव लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5. तो वेरिंग कंसंट्रेशन में इसमें जब हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी ऐड सर्टेन बैक्टीरिया इन स्पेसिफिक अमाउंट इन ईच टेस्ट ट्यूब. ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट, सेम अमाउंट के बैक्टीरिया हम एक ही हर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं. अब बच्चों राइट साइड पे आ जाओ. इन द अपर पोर्शन ऑफ राइट साइड, एज यू कैन अप्रिशिएट, the upper side of the upper diagram of right side, it depicts the MIC. ठीक है बच्चों, जिस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेशन थी एंटीबायोटिक की 64, वहां पे आप देख सकते हैं कि कोई ग्रोथ नहीं बैक्टीरिया की. 32 में भी कोई ग्रोथ नहीं है, 16 में भी कोई नहीं है, 8 में भी कोई नहीं है, 4 में भी कोई नहीं है, 2 में भी कोई नहीं है. जिस टेस्ट ट्यूब में एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन 1 थी, मिलीग्राम थी, माइक्रोग्राम थी, जो भी थी, जिसमें 1 थी, you can appreciate red dots in it. This is the first visible growth. So we will say that 2 milligram of this specific antibiotic is the MIC of this antibiotic.
because we defined it as the minimum amount of drug which is required to inhibit the visible growth of bacteria, that is called MIC. Likewise सबसे नीचे आ जाए राइट साइड में, वही सेम हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं 64, 32 से लेके 0.5 तक, हम उसमें एंटीबायोटिक डालते हैं पहले, उसके बाद हम उसमें बैक्टीरिया डालते हैं। अब हम इसकी किलिंग चेक करते हैं, बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी चेक करते हैं। एज यू कैन अप्रिशिएट 64 में कोई ग्रोथ नहीं है, 32 में भी कोई ग्रोथ नहीं है, 16 के अंदर ग्रोथ आ रही है। सो वी विल से दैट 32 milligram of this specific antibiotic, it is the minimum amount which is required for 99.9% killing of the bacteria. So MIC and MBC, they are very, MIC हमें minimum growth inhibitory effect बताती है हमें, और MBC हमें minimum killing effect बताती है। तो obvious ही बात है, growth को inhibit करने के लिए हमें antibiotic कम चाहिए होगी। In this particular scenario, we only need 2 milligram of antibiotic to inhibit the growth of bacteria, whereas we need 32 milligram of the antibiotic, of the same antibiotic, for the killing effect of bacteria. So this is the difference between MIC and MBC, very important difference. What is microbial culture? ये बड़ा एक commonly आप सुनते होंगे, it is nothing, it is the method of multiplying the microbial organisms. हम organism को multiply क्यों करते हैं? Because when we will have more organism, we will be able to perform many tests on that organism. ऐसा नहीं कि आप 2-4 ऑर्गेनिज्म पकड़ लें, उस पर आप टेस्ट कर लें, because they are microbials, because they are microorganisms. We need certain specific count of the microbes while we are performing any sort of test. So it is the method of multiplying microbial organism. आप कोई भी ब्लड सैंपल दे के आते हैं, उसमें जो पहला स्टेप होता है वो माइक्रोबियल कल्चर कैसे करते हैं। सिंपली हम एक डिश ले लेते हैं, ठीक है, उस डिश के अंदर हम पर्टिकुलर मीडियम जनरेट करते हैं, ठीक है। इफ वी आर सस्पेक्टिंग दैट द ऑर्गेनिज्म कुड बी स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस को खाने में जो चीज पसंद है, उसको पिज्जा पसंद है, उसको रेशमी कबाब पसंद है, उसको कोक पसंद है, तो ये सारी चीजें हम उस डिश में पहले से डाल देंगे। उसके बाद हम वो ब्लड सैंपल डाल देंगे। अगर उस ब्लड के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा तो वो अपने मेन्यू को वहां पे खाएगा। व्हेन ही विल यूटिलाइज द मेन्यू, then it will increase in the number और grow करेगा, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस को ग्रो करना है तो हम उसके ही स्पेसिफिक मेन्यू की चीजें डालेंगे। इस मेन्यू कार्ड को हम बोलते हैं कल्चर मीडियम भी बोलते हैं, एगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट एगर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर मीडिया होते हैं। तो हमने दो चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, पहला स्पेस देनी होती है, दूसरा हमने उनको खाने पीने का मेन्यू देना होता है इन द फॉर्म ऑफ कल्चर मीडियम और द एगर। तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया वहां ग्रो करते हैं, एज यू कैन सी द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ व्हिच आर विजिबल इन दीज मीडिया, ठीक है। कहीं लाइनें लगी हैं, कहीं डॉट्स हैं, कहीं पे कलर डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इन कलर इज ड्यू टू द डिफरेंट कल्चर मीडिया व्हिच वर यूज्ड, ठीक है। अब कल्चर करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं माइक्रोब्स का बच्चों, वो होता है जी ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी किस एंटीबायोटिक से ज्यादा है, ताकि हम वही स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे के उस पेशेंट का हम इन्फेक्शन ट्रीट कर दें। दिस इज द मेथड ऑफ टेस्टिंग द एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी। So this method is called modified Kirby-Bayer. करना सिर्फ देख लो इसको, कोई नाम याद करना आपने। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम उस कल्चर मीडिया के अंदर, जो वो कल्चर मीडिया जिसमें ग्रोथ हो चुकी हो, दिस कल्चर मीडिया, इसमें, ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उसी सेम कल्चर मीडिया के अंदर हम एंटीबायोटिक डिस्पेंसर के थ्रू डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को वहां पे इंसर्ट करते हैं उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। डिफरेंट कलर्स मीन डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हम उस कल्चर मीडिया को रख देते हैं, छोड़ देते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 day 2 day 3 day, वो पड़ा रहता है। आफ्टर दैट वी मेजर द जोन ऑफ इनहिबिशन, किस एंटीबायोटिक ने कितनी ज्यादा ग्रोथ इनहिबिट की। दैट जोन ऑफ इनहिबिशन इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। जितना जिसका जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा होगा बच्चों, दैट विल बी लेबल्ड एज द हाईली सेंसिटिव एंटीबायोटिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। So this is the way how we do the antimicrobial susceptibility testing. It is very important. इससे पता चलता है हमें कि हम कोई गलत एंटीबायोटिक ना दें। मे बी हम बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दे रही हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जी कि ये तो है रेजिस्टेंट, ये ऑर्गेनिज्म इस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। So this antibiotic testing, susceptibility testing, it is very important for the
targeted therapy. What are different mechanisms of resistance to the antimicrobial agent? आप बार बार एक एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, and if the infection is presenting to you again and again, then there are high chances that the antimicrobial that the organism they will develop resistance against the antimicrobial agents used. There are 5-6 mechanisms. सिर्फ briefly बात करूंगा, इसमें डिटेल कुछ नहीं बतानी. The first and important mechanism of resistance opted by the microorganism is the reduced entry of drug into them. So bacteria and the microorganism, they have their own mechanisms by which they limit the entry of drug into their structure. If the drug it will not go into the bacteria, then it will not be able to act if the mechanism is inside the bacteria. If it is designed to block the synthesis of the tetrahydrofolate, if it is designed to suppress the DNA replication process, then the drug it has to go into the microorganism. So microorganism they do not let the drug come into their house. So this is the one mechanism by which they cause resistance. The second is that efflux pump. अगर किसी तरह drug microorganism के अंदर चली भी जाए, doesn't matter. They have their certain other resistance mechanism which is called drug efflux. Microorganisms they have efflux pumps. The job of efflux pumps is to pump out the drug from inside of the microorganism to the outside world. When drug will not be inside, it will not act, and that's how the microorganism will show the resistance. The third one is due to destruction of antibiotic. Some microorganisms they have certain specific enzymes, for example beta-lactamases, which destroy the beta-lactam antibiotics. We have 5-6 types of beta-lactam antibiotics which can be destroyed by the beta-lactamase enzyme produced by almost all of the gram-negative bacteria and very few gram-positive bacteria. This is another mechanism of resistance opted by the microorganisms. The fourth mechanism of resistance is the altered target structure. हमारे पास एक टारगेट होता है जिसको आप रिसेप्टर भी कह सकते हैं, with which the drug has to bind, with which the antibiotic has to bind. Bacteria with repeated exposure to the antibiotic, what do? Is that they alter the shape of the target. When the shape of target is altered, then the drug is incapable of binding with the target. That's how the effective drug is not produced, and microbes they skip the static or the sidal effects of the antibiotics. Incorporation of drug. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म आपकी तरह होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो ये करते हैं कि ड्रग को एज अ सबस्ट्रेट यूज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, कि ड्रग आ गई है, उसी को पकड़ के उसी के टुकड़े टुकड़े करके उसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं, एंड दे यूज इट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ प्रोसेस. तो सर्टेन टाइम जब रेजिस्टेंस होती है तो एंटीबायोटिक देने से इन्फेक्शन ट्रीट होना तो दूर की बात, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है. So this is because of the resistance mechanism which is called incorporation of drug into their growth cycle by certain microorganisms. This is the excellent diagram. मुझे इससे अच्छी डायग्राम मुझे नहीं मिली, आपको अगर मिल जाए तो मुझे मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा. This diagram it is summarizing the differences between gram positive and gram negative bacteria. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की हम बहुत ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जितने भी हम एंटीबॉडी डिस्कस करेंगे, जितने भी हम एंटीबैक्टीरियल्स की बात करेंगे, उसमें जब हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीज बार बार रिपीट होगी. ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ये 4 कैटेगरी तो बहुत डिस्कस होंगी. तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर पता हो, इनके डिफरेंसेस पता हो, क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं डिफरेंट ड्रग्स के. On the left side we have gram positive bacterial cell wall, on the right side we have gram negative bacterial cell wall. जो center में हमारे पास नाम लिखे हैं, these are the structures which are common to both type of bacteria, whereas on the lateral aspects of these diagrams we have structures which are unique to gram positive and gram negative bacteria. इसमें जो एक important बात बताने वाली है, सारी बातें नहीं इसमें बताने वाली, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो यार, आपको सब आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, माइक्रो पढ़ चुके हो आप. इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव. फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम. इट कंटेन्स अ थिक मेशवर्क ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस. ठीक है, सेल वॉल के अंदर होता है.
The gram-negative bacteria, on the contrary, they also have peptidoglycan in their cell wall, but it is very, very thin layer. So we can say that peptidoglycan is very uniquely present in gram-positive bacteria, and it is insignificantly present in the gram-negative bacteria. But gram-negative bacteria, they do have peptidoglycan. So what is the outermost layer? ये देखो बच्चों, this is called capsule. This capsule is the outermost layer of the gram positive and gram negative bacteria, दोनों में कॉमन होता है. इसके बाद ग्राम पॉजिटिव में सबसे पहले हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर आती है. ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास लाइपोपोलीसैकेराइड की लेयर आती है, एंड दिस लाइपोपोलीसैकेराइड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन. व्हाई? बिकॉज इट इज टॉक्सिक टू द it perceives it as a toxin, and it is, since it is the part of microorganism, it is the part of bacteria, that's why it is called as endotoxin. कि है तो बैक्टीरिया का part, but it acts as a toxin. The structure which is present just beneath the capsule in gram negative bacteria, it is the lipopolysaccharide layer, and below that layer we have peptidoglycan, very thin layer of peptidoglycan, and below the peptidoglycan we have a cell membrane or the cytoplasmic membrane, and the space between the cytoplasmic membrane and peptidoglycan in gram negative bacteria, it is labeled as periplasmic space, and this space is the space which contains the beta lactamase enzyme, because beta lactamase enzymes after production they remain in this particular space which is called the periplasmic space. This beta lactamase enzyme, it is one of the resistance mechanism of the gram negative bacteria against the beta lactam antibiotics. ठीक है. हमारे पास बच्चों एक टेक्निक होती है by which we differentiate bacteria into two broad categories, gram and gram negative bacteria. अब इसमें हम करते क्या हैं? हम वापस पे चलते हैं बच्चों. हमने बात की कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बेसिक डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन. gram positive, they are positive bacteria, they have peptidoglycan. Gram negative bacteria, they are negative in nature, they have very thin layer, almost insignificant layer of peptidoglycan. हम करते क्या हैं? ग्राम स्टेनिंग में बच्चों हम ये करते हैं कि स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरिया को, मतलब हम बैक्टीरियल कल्चर में से बैक्टीरिया लेके स्लाइड पे स्प्रेड करते हैं. आफ्टर स्प्रेडिंग द बैक्टीरिया ऑन स्लाइड, वी हीट द स्लाइड. What is the purpose of heating the slide? We heat the slide so that bacteria they may stick up with the slide. जब हम उस पे स्टेन डालें या जब हम स्लाइड को वॉश करें तो बैक्टीरिया भी उसके साथ खुद वॉश आउट ना हो जाए. अब इसका एक नुकसान ये होता है कि some of the bacteria they might get killed during the process of heating when we are heating the slide. But ultimately we have an upper hand, we have an added advantage in the form of fixation of bacteria on the upper surface of slide. Once the slide is fixed, हम फिर क्या करते हैं बच्चों? हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई लेके स्लाइड के ऊपर डालते हैं. जब डाई हम डालते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेनिंग प्रोसेस. ठीक है. अब इस डाई की क्या प्रॉपर्टी होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ डाई इज दैट दिस डाई इज इमीडिएटली टेकन अप बाय द पेप्टाइडोग्लाइकैन. अब ग्राम पॉजिटिव में चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकैन की थिक लेयर होती है, इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डाई, whereas gram negative bacteria they take up the very less amount of the crystal violet dye. इनिशियली जब हम पहला डाई डालते हैं तो चाहे ग्राम पॉजिटिव हूँ चाहे ग्राम नेगेटिव हूँ, दोनों के दोनों हमारे पास कलर्ड आ जाते हैं. ठीक है, पर्पल कलर्ड आ जाते हैं. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम एथेनॉल के साथ उस स्लाइड को वॉश करते हैं. जब स्लाइड वॉश करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकैन वेरी थिन लेयर होती है, द डाई इट इज वॉश्ड when we add or when we wash the slide with the help of ethanol, because peptidoglycan it is in so much less amount that it cannot hold up the dye, it cannot retain the dye. On the contrary, the gram positive bacteria they have very thick layer peptidoglycan, they retain maximum amount of dye when we wash the slide with the help of ethanol. तो हमारे पास ना फिर दो सिचुएशंस आ जाती हैं. Please excuse
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं बता रहा था कि जब हम वॉश करते हैं एथेनॉल से तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे रिटेन द इनिशियल डाई, व्हाई? बिकॉज दे हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर लेयर। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने ये बात की कि एथेनॉल से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनका डाई जो है वो वॉश आउट हो जाता है और वो नजर नहीं आते। तो जस्ट टू विजुअलाइज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वी ऐड द सेकंड डाई सैफरनिन। जब सेकंड डाई हम इंजेक्ट करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे डू नॉट टेक अप द डाई, व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेकन द डाई। उनका कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनका कलर वॉश आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉशिंग विद द एथेनॉल, दे टेक अप द सेकंड डाई and they become pink in appearance. So that's the procedure how we perform gram staining. कंफ्यूज नहीं होना। आगे आपको अच्छी सी डायग्राम दिखाता हूँ एक, ठीक है। फर्स्ट वी हीट फिक्स स्लाइड, देन वी स्टेन, देन वी वॉश, देन वी रीस्टेन। दिस वन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे लुक लाइक दिस, ठीक है। They look like pink colored, they look like purple colored, or sometimes they might look like purplish blue or light blue, ठीक है। This diagram, this is the original diagram how we see the gram positive bacteria in the compound microscope, simple microscope जो आपकी लेबोरेटरी में बड़ी होती है, उसमें हमें बैक्टीरिया इस तरह नजर आते हैं। जबकि बॉटम में जो दो डायग्राम हमारे पास राइट में और लेफ्ट में, this is the appearance of gram positive bacteria on electron microscope, ठीक है। So this is high resolution, high specific appearance of the gram positive bacteria, हमें ऐसे नजर नहीं आते। what do we see is that this diagram by simple compound microscope, the purplish or the purple blue appearance of the gram positive bacteria. This is the appearance of gram negative bacteria. They appear as pink colored. This is the diagram, this is the image which we see in our compound or simple microscope, whereas the bottom diagram, it is the diagram taken up with the help of electron microscope, just to give you a clue. So that's how the gram negative bacteria they look like. This is the list of medically important microorganisms. हमारे पास microorganisms बहुत सारे होते हैं, not microorganism, this is the list of medically important bacteria. ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, anaerobic spirochetes, mycoplasma, chlamydia, and certain other atypical bacteria. So this list is important because we will be discussing the spectrum of antibiotic with respect to this list. ओके बच्चों, हमेशा मैं कहता हूँ अपने लेक्चर के अंदर कि जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। दिस इज द पॉइंट जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाग जाओ, इस स्लाइड को समझ लो, देन अगेन यू कैन गो टू स्लीप। दिस ब्लैक लाइन इट इज इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। सपोज कर लो इसको आप, ठीक है। बॉटम में आ जाओ, ठीक है। रेड राइटिंग में लिखा हुआ है जी, दिस पॉइंट इट इज द पॉइंट ऑफ नो इन्फेक्शन, देन वी हैव इन्फेक्शन। वंस वी गेट इन्फेक्शन, देन वी डेवलप सिम्टम्स। When we develop symptoms, then we contact to certain doctor, and doctor isolates the pathogen with the help of laboratory personnel, and then we get treatment, and then the infection it resolves. So there are 5 categories of treatments based upon the stage of the infection. Infection किस stage पे है उसकी basis पे हम treatment को हम एक specific नाम देते हैं। If the person has no infection, then the treatment given against some infection at that point it is labeled as prophylaxis. इन्फेक्शन है तो नहीं, लेकिन इन्फेक्शन हो ना जाए पहले से मेडिसिन ले लो, प्रोफाइलैक्टिकली मेडिसिन ले लो। आपको इन्फेक्शन हो गया लेकिन आप सिम्टम डेवलप नहीं हुए, इन्फेक्शन कंफर्म हो गया किसी टेस्ट के थ्रू या किसी भी तरह से, बट सिम्टम अभी नहीं आया आपके अंदर, तो थेरेपी गिवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन बट बिफोर द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इट इज लेबल्ड एज प्रीएम्प्टिव थेरेपी. Whereas okay, once we have developed symptoms to that infection, then before the identification of the pathogen कि ये किस specific bacteria से हुआ है, because हम sample तो ले लेते हैं, उसके बाद उसको कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाते हैं। तो सिम्टम्स आने के बाद जो एक ब्रॉड कैटेगरी की थेरेपी स्टार्ट की जाती है कि जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को कवर अप करे, that therapy it is called the empiric therapy. ठीक है, ऐसी की मेडिसिन दे दो, ऐसी एंटीबायोटिक दे दो जो 15-20 important organisms को किल करे, which can cause these particular symptoms. For example, patient को कफ है,
we know that cough can be caused by this list of bacteria. So we will give certain antibiotic which will be effective against all the bacteria. हम target नहीं देंगे. So that is called as empiric therapy. But once the pathogen is isolated, then we shift towards the definitive therapy. जो particular एक single medicine है उस bacteria के against, तब हम वो देते हैं. अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए ना, तो ठीक होने के बाद भी थोड़ा बहुत चांस रहता है कि इनमें इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है. फॉर एग्जांपल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, किसी ने लंग ट्रांसप्लांट कराया हो, उनको हम इंटेंशनली इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर रखते हैं सो दैट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो. तो उनके अंदर हमें डाउट रहता है कि चूंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ऑफ इन्फेक्शन भी रह गया तो वो दोबारा फुल ब्लोन इन्फेक्शन हो सकता है. सो एट द एंड, once the symptoms they are resolved, we give a therapy to suppress the residual infection. That is called the post treatment suppressive therapy. These are the 5 categories of chemotherapeutic agents which we will be discussing in throughout chemotherapy. What is prophylaxis for malaria? What is preemptive treatment for malaria? What is empiric therapy for malaria? What is the definitive therapy for malaria caused by Plasmodium falciparum, caused by Plasmodium vivax ovale? वो definitive होगी. And what will be the post treatment suppressive therapy for malaria caused by Plasmodium falciparum in HIV patient? So these are the 5 categories of drugs which can be labeled in infection caused by any pathogen. ये बहुत important है समझना इनको बच्चों. इसी ही डायग्राम को, इसी ही इलस्ट्रेशन को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है, प्रोफाइलैक्सिस इलेबोरेट की है, बाकी सारी वही रहेंगी. आई हैव इलेबोरेटेड द प्रोफाइलैक्सिस. बच्चों हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस 3 तरह की होती है. वन इज कॉल्ड प्रेप, अदर इज पेप, एंड थर्ड वन इज प्रोफाइलैक्सिस इन स्पेशल केसेस. व्हाट इज प्रेप? प्रेप इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं दी हेपेटाइटिस बी की. ठीक है, बट जब भी बच्चा पैदा होता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही पैदा हुआ उसको 2 वैक्सीन देते हैं. नंबर 1 इज द ओरल पोलियो वैक्सीन, द सेकंड वन इज द एंटी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. these 2 वैक्सीन दे आर गिवन इमीडिएटली राइट आफ्टर बर्थ. जैसे पैदा हुआ उसको लम्बा पालो और उसको ये 2 वैक्सीन दे दो. याद रखना है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. अब उस बेबी को हेपेटाइटिस बी नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हो उसको हेपेटाइटिस हो, उसके बाद वैक्सीन दें. बिफोर एक्सपोजर इफ द वैक्सीन और एनी ट्रीटमेंट इज गिवन, देन दैट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. अल्लाह ना करे आप सारे, आई होप कि आप सारे के सारे हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड होंगे. आप कल को हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब करते हुए आप किसी पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, किसी पेशेंट को आप कोई मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको कोई प्रिक लग जाता है, तो आपके हाथ में भूल जाने कि यार ये क्या हो गया. एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है, उसका मैं सैंपल ले रहा था और उसका सिरिंज का नीडल का प्रिक मुझे हो गया. तो व्हाट आर द चांसेस दैट आई विल गेट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, और हाउ कैन आई प्रिवेंट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. लेकिन अगर तो आप हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन रिकमेंडेशन ये है, उसको वॉश करें, उसको अच्छी तरह स्टेरिलाइज करें. बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है. तो जो एक स्पेसिफिक काम करना होता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन. द रिकमेंडेशन इज कि आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का दोबारा से कोर्स करें, चाहे आप पहले से वैक्सीनेटेड क्यों नहीं है, चाहे बचपन में आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई. तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. वंस यू हैव come in contact with the pathogen, then the treatment given before the emergence, before the onset of symptoms is called post exposure prophylaxis. अच्छा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं. एक और रिकमेंडेशन है कि अगर आपको नीडल पे इंजरी होती है और आपको बहुत ही हाई चांस है कि जी आपका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. किसी पेशेंट से ले लेंगे जिसको हेपेटाइटिस हुआ था और वो ठीक हो गया. ठीक है, ये लंबी चौड़ी डिस्कशन है. अब जिसको हेपेटाइटिस बी हो जाता है उसको पहले अक्यूट होता है. अब जिसको अक्यूट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे कम बैक, वो नॉर्मल हो जाते हैं.
जो बंदा अक्यूट से क्रॉनिक में जाता है ना, वो फिर मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, उसको लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, इवन डेथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि जिसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है हर बंदे ने मरना है। आफ्टर अक्यूट फेज, इफ योर बॉडी हैज मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज in very good amount, then you will be reverted back towards the healthy life, जब तक आप क्रॉनिक में नहीं जाता। चलें इसको छोड़ते हैं। The post exposure prophylaxis is the one which is given after the exposure, and prophylaxis in special cases, for example एक पेशेंट है, उसकी हमने स्प्लीन रिमूव कर दी है, कोई एक प्रॉब्लम थी, स्प्लीनेक्टमी कर दी, ठीक है। अब चूंकि स्प्लीन रिमूव कर दी है, देन स्प्लीन इज वन ऑफ आवर immunological organ, ठीक है। it has very excellent place in our immunity classification, spleen। अब स्प्लीनेक्टमी होगी, स्प्लीन निकाल दी, और अगर आपकी एज है 60+, तो ये रेकमेंडेड है कि ऐसे बंदे जिनमें स्प्लीन ना हो, उनको हर साल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट आपने वैक्सीन देनी है, अदरवाइज दे विल एंड अप इन निमोनिया और मेनिंजाइटिस एंड दे कैन इवन डाई। दिस इज अ स्पेशल केस। इसी तरह हमारे पास स्पेशल केस और बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफिलैक्सिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है, किसी पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, फॉर एग्जांपल HIV है, तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, हम खुद से पहले से ही प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर देते हैं। लाइकवाइज कीमोप्रोफिलैक्सिस फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, आगे देखते हैं। ये देखिए, व्हाट इज प्रोफिलैक्सिस? एनी एक्शन व्हिच इज टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज, चाहे वो एक्सपोजर से पहले हो चाहे एक्सपोजर के बाद हो, आपने डिजीज को प्रिवेंट करना है कि सिम्टम ना है। बस प्रेप हो गया, पेप भी हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। दिस इज द एक्सटेंसिव लिस्ट। ये आप सिर्फ देख लें, याद नहीं करनी, सिर्फ देखना है इसको। इसमें देखना क्या है बच्चों? इसमें आपने देखना ये है कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशन हैं सर्जरी की, और उन कंडीशन में हम सर्टन एंटीबायोटिक्स को रेकमेंड कर रहे हैं। एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी होनी है, सर्जरी से पहले हम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं, सो दैट पेशेंट मे नॉट डेवलप पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन। तो दिस इज कीमोप्रोफिलैक्सिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसमें एक चीज जो मैं चाहूंगा पर्सनली, आप इसमें एक चीज आप नोट कर लो, वो ये है दैट the drug which is cefazolin, it is the cephalosporin bacterial cell wall sensor inhibitor. It is being repeated in 80 to 90% of cases. Cefazolin is the drug of choice for many surgical procedures for chemoprophylaxis. ये हाउस ऑफिसर का ही काम होता है कि सर्जरी स्टार्ट होने से पहले उसने सिफेज़ोलिन का इंजेक्शन उठा के पेशेंट को बेड पे जाने से पहले लगा देना है, ठीक है। विद इन 1 आवर लगाना होता है बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जरी। ये सारा बता दिया जी, बता दिया, ये बता दिया। What are differences between narrow spectrum, broad spectrum and extended spectrum? We are about to finish the lecture, do not you worry, बस 5 मिनट और चाहिए मुझे। Narrow spectrum, narrow mean very narrow. These are the agents which act on a single or limited group of microorganisms. For example, isoniazid. Isoniazid is the drug of choice for mycobacteria for tuberculosis. It does not affect any other category of medically important bacteria. So we can say that isoniazid, it is the narrow spectrum antibiotic. Then we have broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics, they are the antibiotics which are effective against many groups of bacteria. In this scenario, you can say that we have example of tetracycline, which is effective against gram-negative rods, anaerobic organisms, spirochetes, mycoplasma, chlamydia, and certain other atypical bacteria. So broad spectrum antibiotics or broad spectrum drugs, they are effective against many bacteria. And broad spectrum antibiotics, they are the drugs of choice for empiric treatment of any infection, जिसमें हम चाहते हैं कि multiple infections covered हो, multiple organism covered हो. Next we have extended spectrum. Extended spectrum समझने से पहले बच्चों आपको extended का मतलब आना चाहिए. What does extended mean? Extended mean that to extend the work of some antibiotic from one point to another point. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्रग है पहले से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन हमारे पास 3-4 कैटेगरीज को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है।
हम चाहते हैं कि इनको हम पेनिसिलिन के काम को एक्सटेंड कर दें, इसका स्पेक्ट्रम बढ़ा दें। हम फिर क्या करते हैं बच्चों, हम केमिकल ऑल्ट्रेशन करते हैं पेनिसिलिन के अंदर, and by chemical alteration we manufacture a new compound which is called as ampicillin. So this new compound which has come into existence by chemical alteration of parent compound, this new compound has extended activity against certain other microorganisms apart from penicillin. So this type of spectrum is called extended spectrum, and antibiotics they are called as एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसमें हम काम को बढ़ा देते हैं, आगे ले जाते हैं। जैसे आप लोगों के एमबीबीएस को 5 साल से घसीट के हम 10 साल पे ले जाए, ये बहाना करके कि कोरोना है कोरोना है, आप ग्रेजुएट करोगे 10 साल में, एक्सटेंडेड ग्रेजुएशन होगी आपकी फिर, ठीक है। देन वी हैव कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एंड टाइम डिपेंडेंट किलिंग। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो वो बहुत अच्छी किलिंग करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं कि उनकी कंसंट्रेशन को ना बढ़ाओ, उनको टाइम दे दो कि जी आपके पास 6 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, आपके पास 10 दिन है, आप आराम से काम करो। So depending upon the mode, we categorize antibiotics into 2 subcategories: concentration dependent killing and time dependent killing. जो हमारे पास concentration dependent killing होती है, इसका एक फायदा होता है, वो ये होता है कि हम सुबह सुबह ही पेशेंट को इन्फ्यूजन के अंदर एक अच्छा खासा बोलस लगा देते हैं, अच्छी खासी हैवी अमाउंट इंजेक्ट कर देते हैं, फिर पेशेंट से कहते हैं जा मेरा पुत्र सो जा, 2 दिन सुकून कर, 1 दिन सुकून कर। तो रिपीटेड डोजिंग इससे हम अवॉइड कर सकते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग वाले एंटीबायोटिक्स। दूसरा फायदा ये होता है कि एकदम से हाई कंसंट्रेशन जब जाती है तो रैपिड इफेक्ट आते हैं, रैपिडली पेशेंट ठीक हो जाता है। वो जो है ना टीका का इफेक्ट क्यों जल्दी आता है, अगर उस इंजेक्शन के अंदर कोई ऐसी एंटीबायोटिक थी जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती थी, तो टीके में अच्छी खासी अमाउंट आपको इंजेक्ट कर दी जाती है और फटाफट आपको आराम भी आ जाता है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट किलिंग, ठीक है। व्हाट इज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट? कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरोक्विनोलोन्स। इन एंटीबायोटिक्स जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो एंटीबायोटिक तो हम स्टॉप कर देते हैं आफ्टर 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, जितना हमें इफेक्ट चाहिए होता है। बट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक इट कीप्स ऑन कमिंग इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ थेरेपी, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब ये क्यों आता है? इन केस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एक फीचर होता है दैट they tightly adhere with the plasma proteins and then they keep on releasing themselves from the plasma proteins very slowly over the period of days and weeks. आपने एंटीबायोटिक देना बंद कर दी लेकिन वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड स्टेट में है और it will take 5 days, 7 days, even weeks that whole of the antibiotic it will be released and it will be excreted by the kidneys. So that's why post antibiotic effect comes with the use of certain antibiotics. आपने अगर फील किया हो कि आपका फीवर होता है और आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक आप लेना बंद कर देते हैं लेकिन आगे 5-6 दिन तक आपको यूरिन में स्मेल फील होती है, आपको मुंह के अंदर टेस्ट चेंज फील होता है, सलाइवा में स्टीड हो रही होती है आपकी एंटीबायोटिक, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, दैट इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड। लास्ट स्लाइड जी। व्हाट आर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी? वैसे तो बच्चों हर एंटीबायोटिक थेरेपी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है एडवर्स इफेक्ट्स की, बट देयर आर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस which are not good complications. For example, hypersensitivity. Hypersensitivity is defined as exaggerated immune response. ठीक है, एक होता है नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, एक होता है एक्सैजरेटेड नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड हाइपरसेंसिटिविटी। इट हैज मल्टीपल लेवल्स, इसकी टाइप्स होती है टाइप 1, 2, 3, 4, फिर टाइप 1 के आगे मल्टीपल लेवल्स होते हैं फ्रॉम स्लाइट इचिंग, फ्रॉम स्लाइट अर्टिकेरिया till anaphylactic shock. So these are different levels of hypersensitivity. Then drugs and chemotherapy drugs, they can cause direct toxicity, they can even cause super infections. ठीक है, बस ये डायग्राम देख लो। This is one of the example of hypersensitivity. This is called Steven Johnson syndrome. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल रैशेस हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, म्यूकोजा भी इन्वॉल्व है, लिप्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ट्रंक, फ्रंट ऑफ चेस्ट, they are also involved. This is the rapid and instant rash which can occur due to use of certain antibiotics. For example,
chloramphenicol, it is very notorious to cause Stevens-Johnson syndrome. It is the hypersensitivity reaction towards this antibiotic. Then we have toxic epidermal necrolysis, TEN. This is the aggressive form as compared to Stevens-Johnson syndrome. As you can appreciate that there is peeling of epidermis. Epidermis peel off हो जाती है due to necrosis. ठीक है? So toxic epidermal necrolysis. It is also the hypersensitivity reaction to certain antibiotics. These are the differences between Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis. एक तीसरी चीज होती है जो सेंटर में नजर आ रही है आपको, that is Stevens-Johnson syndrome and TEN overlap. दोनों चीजें इकट्ठे भी हो सकती हैं. सिर्फ देख लीजिएगा, इसको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है. Direct toxicity. This is literally the second last slide and this is the last slide. ठीक है, बस ये सिर्फ देख लो. Super infection. Infection which occurs on top of earlier infection. ठीक है, जैसे एक टॉपर होता है और एक सुपर टॉपर होता है कि एक टॉपर को क्रॉस करके एक बच्चा आगे चला जाए, वो सुपर टॉपर होगा. किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है किसी भी वजह से, आप एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देने से वो इन्फेक्शन ठीक होगा, लेकिन जो आपके नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ सप्रेस होगी. व्हेन द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इज सप्रेस्ड, तो उनका जो नॉर्मल फ्लोरा का नॉर्मल फंक्शन है वो खत्म हो जाता है. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हमें नॉर्मली फीवर या हमें नॉर्मली प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते बिकॉज आवर नॉर्मल फ्लोरा इट इज सप्रेसिंग द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बट व्हाइल ट्रीटिंग वन इन्फेक्शन, इफ वी disturb the normal flora, if we cause the killing of normal flora, then normal flora they will not be able to suppress the other pathogenic organisms which it is normally doing. Then we will develop a second infection which is called as super infection. You can also say you can also define it as the infection on top of the earlier infection, that is called as super infection. इसकी जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है, it is the pseudomembranous colitis. बच्चों हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है which is called as Clostridium difficile. Clostridium difficile नॉर्मली इसको स्प्रेस किया होता है नॉर्मल फ्लोरा ने, लेकिन हम एंटीबायोटिक लेते हैं किसी और मसले के लिए और हमारा नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाता है, तो Clostridium difficile जो है वो फिर शोखा हो जाता है और फिर वो क्या करता है जी, फिर वो ये काम करता है pseudomembranous colitis in the कोलन. ठीक, कोलन में इन्फेक्शन होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस सूडोमेम्ब्रेन. ये पैचेस से बन जाते हैं एक्सुडेट के, एक ट्रू लेयर नहीं बनती, एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं बनती. इसको हम कहते हैं सूडोमेम्ब्रेन बिकॉज इट इज इंटरमिटेंट, इट इज नॉन कंटीन्यूअस. So this pseudomembranous colitis caused by Clostridium difficile, it is the classic example of super infection. अब बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं जो ये काम करती हैं. फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन करती है, मोस्ट नोटोरियस एम्पिसिलिन, it causes the pseudomembranous colitis. अब इसको फिर ठीक कैसे करते हैं वो फिर कभी बात करेंगे. थैंक यू सो मच जी. वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी. जैसे हमेशा बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फर्दर टॉपिक्स. इसको आपने रिवाइज करना है. अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है जी, अब मैंने जितना आपको पढ़ाया 60-70 स्लाइड तकरीबन है ये, ना ही बिग कैटजिंग में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, ना ही मिनी कैटजिंग में ये मेंशन्ड है, बट दे आर डिस्क्राइब्ड एट वेरियस पॉइंट्स इनसाइड डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ कीमोथेरेपी. तो आप एकदम से ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज MIC, व्हाट इज MBC, व्हाट इज सुपर इन्फेक्शन एंड ब्ला 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 सारी चीजें. व्हाट इज एम्पेरिक थेरेपी, व्हाट इज प्रीएम्प्टिव थेरेपी, व्हाट इज प्रोफिलैक्सिस, प्रेप, पेप. तो उसका मैंने एक लेक्चर बनाया है विद द नेम ऑफ इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी. आई विल फॉरवर्ड दिस लेक्चर लाइक ऑलवेज. आपने क्या करना है, आपने ये चैप्टर रीड करना है फ्रॉम द लिपिनकॉर्ड. मैं रिपीट कर रहा हूँ दो चीजें. नंबर एक, सीनियर्स रेकमेंड करेंगे कि जी लिपिनकॉर्ड से आप पूरी कीमोथेरेपी कर लो. बिलीव मी, जो मर्जी कर लो, आप कैटजन को बीट नहीं कर सकते कीमोथेरेपी. ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे, एग्जामिनर पेपर बनाता है बच्चों कैटजन से, वो भी कैटजन बिग से. एटलीस्ट कैटजन मिनी तो पढ़ो ना, और साथ में टीचर्स की स्लाइड लो. इतना तो आपको करना चाहिए ना. ठीक है ना. सिर्फ लिपिनकॉर्ड से आपने इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी वाला चैप्टर पढ़ना है, वो भी मैं
इंशाल्लाह आपको क्रॉप करके उसका PDF बना के वो सिंगल चैप्टर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा लिपिन गॉड से, ठीक है, परेशान नहीं होना। आपने वहां से पढ़ना है, ये साइड में सेंड कर दूंगा, ये भी आपने पढ़नी है और अच्छी तरह आपने इनको याद करना है। क्विज के अंदर मैं इनसे क्वेश्चन बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिसने क्वेश्चन पूछना हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। एक सेकंड। बाद अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और प्री एम्प्टिव थेरेपी में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि दोनों में सिम्टम्स तो नहीं आए होंगे, जस्ट इन्फेक्शन ही होगा। देखो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर कैप्टन आपको सिर्फ एक्सपोजर होता है, उसमें आप इन्फेक्शन डेवलप नहीं करते। जस्ट आपको एक इंसिडेंट हुआ है, इमीडिएट इंसिडेंट हुआ है, एक ये पॉइंट है। दूसरा जो प्रिवेंटिव थेरेपी है दैट इज टारगेटेड फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस, whereas prophylaxis is targeted for the prophylactic purposes, कि उसमें आपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना होता है। जो प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं वो तब देते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की नीडल से प्रिक हुआ तो हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी में चला गया, लेकिन अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो मल्टीप्लाई करेगा, उसका पूरा साइकिल है। इट विल टेक 7 to 14 डेज, जिसको हम कहते हैं प्रोड्रोमल फेज कहते हैं किसी भी इन्फेक्शन की, ठीक है। उसमें वो अपना पूरा टाइम लेगा, फिर इन्फेक्शन डेवलप होगा, फिर सिम्टम आना स्टार्ट होंगे। तो प्रिवेंटिव थेरेपी में इन्फेक्शन हो चुका है, आप टेस्ट करवाते हैं जाके, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप कहते हैं अच्छा मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मुझे जब सिम्टम तो कोई नहीं आए। दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव थेरेपी once the infection has established but symptoms they have not come into play. Okay sir, thank you. Okay. No more further questions? सर Okay जी जी सर अगर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में लेटेंट पीरियड में हो कि वो इन्फेक्शन नहीं करा लेकिन स्टिल देयर है, तो फिर कौन सी थेरेपी यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं, एक सेकंड, उसे हम कहते हैं अच्छा उसका नाम कोई नहीं है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ एनी करियर स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मेनिंजोकोकाई है, ठीक है, मेनिंजोकोकाई हो गया। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी साल्मोनेला टाइफी हो गया, मलेरिया हो गया। आफ्टर द ट्रीटमेंट द ऑर्गेनिज्म दे गो इनटू क्विसेंट फेज, दे गो इनटू डोरमेंट फेज एंड पर्सन बिकम्स करियर। कि उसमें डिजीज तो नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वो करियर बन जाता है। कभी किसी टाइम वो इन्फेक्शन दोबारा से फुल ब्लोन इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट का नाम अब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन इसे हम कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल वी से दैट rifampin is the drug of choice for elimination of the meningococcal career state. अब ऐसे बोलते हैं, मतलब eradication of the career state of certain organism. इसकी कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, गुड लक एवरीवन। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, वी विल डिस्कस पेनिसिलिन।